Hey buddies, where are you going? Subscribe my channel to meet me again. Hello everyone and welcome to our channel Fly School, and today we are going to do the 7th and 8th part of this chapter, the nation and its heroes. Another way of looking at social movements is to see how they affect different groups in society. Let us see how the roles of women were specified in the anti-imperial movement in Vietnam and what that tells us about nationalist ideology. Women as rebels. Women in Vietnam traditionally enjoyed a greater equality than in China, particularly among the lower classes, but they had only limited freedom to determine their future and played no role in public life. तो women जो थी वहाँ पर वो एक बहुत ही ज़्यादा इक्वालिटी उनको मिलती थी, वहाँ चाइना से ज़्यादा इक्वालिटी उनको वहाँ पर मिलती थी, भले ही वो लोअर क्लासेस से हों, लेकिन उनको एक प्रॉपर इक्वालिटी वहाँ पर मिलती थी और वो पूरे फ्रीडम से वहाँ पर रहती थी. As the nationalist movement grew, the status of women came to be questioned and a new image of womanhood emerged. तो जैसे नेशनलिस्ट हुआ तो जो उसका स्टेटस था वुमेन का उसको क्वेश्चन किया गया और एक जो वुमेनहुड की जो नई इमेज थी वो निकल कर आई थी. Writers and political thinkers began idealizing women who rebelled against social norms. तो राइटर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स ने कहा कि वुमेन जो होती हैं वो एक तरह से रिबल है सोशल नॉर्म्स के लिए, मतलब सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट एक रिबल है. इन द 1930s, a famous novel by Nathlin caused a scandal because it showed a woman leaving a forced marriage and marrying someone of her choice, someone who was involved in nationalist politics. तो 1930s में एक नोवेल, फेमस नोवेल नाथलिन जो नाथलिन ने लिखी थी उसमें था एक ऐसा दिखाया गया था कि एक जो विमेन है वो एक फोर्स्ड मैरिज को छोड़ करके अपनी मर्जी के लड़के से शादी करती है, समवन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, एक ऐसा लड़का जो कि नेशनलिस्ट में इन्वॉल्व था. This rebellion against social conventions marks the arrival of the new women in Vietnamese society. तो ये जो रिबेलियन अगेंस्ट सोशल कन्वेंशन था तो ये एक विमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा, ये एक वियतनाम सोसाइटी के लिए एक नया अराइवल था. हीरोज ऑफ पास्ट टाइम्स. Rebel women of the past were similarly celebrated. In 1913, the nationalist Phan Boi Chau wrote a play based on the lives of the Trung sisters who had fought against Chinese domination in 3943 CE. तो फान बोई चाओ ने एक प्ले लिखा जो कि ट्रंक सिस्टर्स के बारे में था, जिन्होंने चाइनीज डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई की थी. इन दिस प्ले he depicted these sisters as patriots fighting to save the Vietnamese nation from the Chinese. तो इस प्ले में फान बोई चाओ ने दिखाया था कि वो जो सिस्टर्स हैं वो वियतनामीज से फाइट कर रही हैं, जो वियतनाम को चाइनीज से फाइट कर रही हैं वियतनाम को चाइनीज से सेव करने के लिए. The actual reasons for the revolt are a matter of debate among scholars, but after Phan's play, the Trung sisters came to be idealized and glorified. तो इनका जो एक्चुअल रीज़न था वो एक डिबेट थी, ठीक है, डिबेट हुई थी स्कॉलर्स के बीच में, तब इन्होंने एक रिवॉल्ट किया था, लेकिन ये जो निकल के आया ये फान बोई के प्ले से ही बाहर निकल के आया. ये आइडियलाइज और ग्लोरीफाई ये दोनों सिस्टर तभी की गई. They were depicted in paintings, plays and novels as representing the indomitable will and the intense patriotism of the Vietnamese. We are told that they gathered a force of over 30,000, resisted the Chinese for 2 years, and when ultimately defeated, they committed suicide instead of surrendering to the enemy. तो हमें उन्हें बताया, मतलब वो क्या था, उन्होंने कम से कम 30,000 से भी ज़्यादा फोर्स जो थी इकट्ठी कर ली थी और चाइनीज़ को रेजिस्ट किया 2 साल के अंदर, और जब वो हार चुकी थी तब उन्होंने सुसाइड कर ली. सरेंडर नहीं किया लेकिन उन्होंने सुसाइड कर ली. Other women rebels of the past were part of the popular nationalist lore. One of the most venerated were Triu-ol, who lived in the 3rd century CE. Orphanaged in childhood, she lived with her brother. On growing up, she left home, went into the jungles, organized a large army and resisted Chinese rule. तो अब एक बात आती है यहाँ पर एक और विमेन के बारे में जिसका नाम है ट्राई-ओ, जो कि एक ऑर्फन थी, बचपन से एक ऑर्फन थी
और वो अपने भाई के साथ रहती थी, और बड़े होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, वो जंगल में रहना शुरू कर दिया। एक बड़ी सी आर्मी उन्होंने बनाई और फिर चाइनीज़ रूलर्स के खिलाफ उन्होंने भी लड़ाई की। फाइनली व्हेन हर आर्मी वॉज क्रश शी ड्रॉन्ड हरसेल्फ, जब उनकी आर्मी क्रश हो गई तो वो खुद ही अपने आप ड्रॉन हो गई। शी बिकेम अ सैक्रेड फिगर, नॉट जस्ट अ मार्टियर हु फॉट फॉर द ऑनर ऑफ द कंट्री। नेशनलिस्ट पॉपुलराइज्ड हर इमेज टू इंस्पायर पीपल टू एक्शन। वो सिर्फ एक मार्टियर नहीं थी जो कि कंट्री के ऑनर के लिए लड़ी थी, बल्कि वो एक नेशनलिस्ट थी जो लोगों को इंस्पायर भी करती थी। Women as warriors. In the 1960s, photographs in magazines and journals showed women as brave fighters. 1960 के जो photographs और magazine दिखाई देते हैं उनमें women को brave fighters की तरह दिखाया गया है. There were pictures of women militia shooting down planes. उसमें pictures है women की जो shooting कर रही हैं. They were portrayed as young, brave and dedicated. Stories were written to show how happy they felt when they joined the army and could carry a rifle. तो पोर्ट्रेज ऐसा दिखाते हैं कि जब ऐसा स्टोरीज़ में दिखाया गया है कि वो कितना खुश होती थी जब उनके हाथ में राइफल होती थी और वो आर्मी को ज्वाइन करती थी. सम स्टोरीज स्पोक ऑफ देयर इनक्रेडिबल ब्रेवरी इन सिंगल हैंडेड किलिंग द एनिमी. और कुछ स्टोरीज़ में ऐसा भी उनकी ब्रेवरी के बारे में बताया गया है कि वो एक हाथ से ही एनिमी को मार दिया करती थी. तो यहाँ पर एक विमेन का नाम है ग्वेन थी स्वान, फॉर इंस्टेंस वॉज रिप्यूटेड टू हैव शॉट डाउन अ जेट विद जस्ट 20 बुलेट्स. तो उन्होंने 20 बुलेट से एक जेट को शॉट डाउन कर दिया था. वीमेन वर रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली एज वॉरियर्स बट ऑल्सो एज वर्कर्स. उनको वॉरियर्स की तरह ही ना वर्कर्स की तरह भी दिखाया गया. दे वर शोन विद अ राइफल इन वन हैंड एंड अ हैमर इन द अदर. तो एक हाथ से उन्हें एक हाथ में दे रखी है राइफल और दूसरे हाथ में एक हैमर दिया गया है. वेदर यंग और ओल्ड वुमेन वी कैन टू बी डिपिक्टेड एज सेल्फलेसली वर्किंग एंड फाइटिंग टू सेव द कंट्री. As casualties in the war increased in 1960s, women were urged to join the struggle in larger numbers. तो जैसे जैसे casualties बढ़ती गई, wars बढ़ती गई 1960 तक, तो women ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा women क्या थी, अर्ज करने लगी आर्मी ज्वाइन करने की. Many women responded and joined the resistance movement. बहुत सी women ने रिस्पॉन्ड किया और ज्वाइन किया रेजिस्टेंस मूवमेंट. दे हेल्प इन नर्सिंग द वाउंडेड. कुछ वुमेन ने ऐसे हेल्प करी कि वो नर्स बन गई. जो घायल हुए थे लोग उनको संभाला. कंस्ट्रक्टिंग अंडरग्राउंड रूम्स एंड टनल्स एंड फाइटिंग द एनिमी. And along Ho Chi Minh Trail, young volunteers kept open 2,195 kilometers of strategic roads and guarded 2,500 key points. तो volunteers की तरह भी उन्होंने काम किया. They built 6 airstrips, neutralized tens of thousands of bombs, transported tens of thousands of kilograms of cargo, weapons and food, and shut down 15 planes. तो ये सब उनके जो काम हैं वो बताए गए हैं. Between 1965 and 1975 of the 17,000 youth who worked on the trail, 70 to 80% were women. तो 1965 और 1975 में जो 17,000 यूथ ने वहाँ पर काम किया उनमें से 70 से 80% women थी. One military historian argues that there were 1.5 million women in the regular army, the militia, the local forces and the professional teams. तो total 1.5 million women थी regular army में और militia, local forces और professional teams में. Women in times of peace. By the 1970s, as peace talks began to get underway and the end of the war seemed near, women were no longer represented as warriors. जब लास्ट में 1970 में जहाँ पे एंड था बिल्कुल, जब लड़ाई ख़त्म होने को आई थी, तब वुमेन को कोई वेरियर की तरह नहीं देखता था. नाउ द इमेज ऑफ वुमेन एज वर्कर्स बिगेन टू प्रीडोमिनेट. दे आर शोन वर्किंग इन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स रेदर देन एज अ फाइटर. अब उनकी जो इमेज थी वो डोमिनेट होने लगी. ओके उनको सिर्फ ऐसे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स की तरह, फैक्ट्री में काम करने वालों की तरह और प्रोडक्शन यूनिट्स में काम करने वालों की तरह दिखाया गया. फाइटर्स उनको नहीं दिखाया गया. द एंड ऑफ द वॉर. The prolongation of the war created strong reactions even within the US. It was clear that US had failed to achieve its objective. तो जब लास्ट में US से उनकी लड़ाई हुई तो ये तो हमने देख लिया कि US को जो चाहिए था, उनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो उनको नहीं मिल पाए. The Vietnamese resistance had not been crushed. The support of the Vietnamese people for US action had not been won. In the meantime, thousands of young soldiers had lost their lives. तो उस टाइम पर क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी. यंग यूएस सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी. वियतनामीज के जो सिविलियंस थे उनको मार दिया गया. दिस वॉज अ वॉर दैट हैज़ बिन कॉल्ड द फर्स्ट टेलीविजन वॉर. ये एक ऐसी वॉर थी जिसको फर्स्ट टेलीविजन वॉर कहा गया.
बैटल सीन्स वर शोन ऑन द डेली न्यूज़ प्रोग्राम पर इसको दिखाया जाता था. मैनी बिकेम disillusioned with what the US was doing, and writers such as Mary McCarthy and actors like Jane Fonda even visited North Vietnam and praised their heroic defense of the country. तो ये जो राइटर्स थे मैककार्थी और जेन फोंडा, वो नॉर्थ वियतनाम में भी गए और उन्होंने उनकी प्रशंसा की, उनको सराहा कि एक बहुत ही ज़्यादा हीरोइज्म वाला काम उन्होंने वियतनाम ने किया है. द स्कॉलर नोआम कॉम्सी कॉल्ड द वॉर द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू पीस, टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन. तो नोआम चॉम्स्की ने कहा है कि उस वॉर को उन्होंने कहा कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू पीस, टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन. The widespread questioning of government policy strengthened move to negotiate an end to the war. तो जो widespread गवर्नमेंट की जो क्वेश्चनिंग थी गवर्नमेंट की, वो एक एंड पर ले आई थी वॉर को. अ पीस सेटलमेंट वॉज साइंड इन पेरिस इन जनवरी 1974. एक पीस सेटलमेंट हुआ पेरिस में 1974 में. दिस एंडेड कॉन्फ्लिक्ट विद द यूएस, बट फाइटिंग बिटवीन द साइगोन रिजाइम एंड द एनएलएफ कंटिन्यूड. यूएस के साथ इससे क्या हुआ था कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गई थी, लेकिन साइगोन रिजाइम और एनएलएफ के बीच में जो लड़ाई थी वो अब भी चल रही थी. द एनएलएफ ऑक्यूपाइड द प्रेसिडेंशियल पैलेस इन साइगोन ऑन 30 अप्रैल 1975 एंड यूनिफाइड वियतनाम. उसके बाद एनएलएफ ने क्या किया, एनएलएफ ने प्रेसिडेंशियल पैलेस जो थी साइगोन में उसको ऑक्यूपाई कर लिया 30 अप्रैल 1975 को, और जो वियतनाम था उसको पूरा एकजुट कर दिया. ओके बच्चों, तो ये आपका चैप्टर था. ये चैप्टर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू. बाय बाय एवरीवन.